Hello students, our today topic is alternate sources of energy. First, we see a pie chart. This is showing the different sources of electricity in India. Coal, natural gas are fossils fuel. 61 and plus 9, 70%. 70% of electricity is produced by using fossil fuels. The fossil fuels are non-renewable sources of energy. These fuels were formed over millions of years ago and there are only limited reserve. So we need to conserve them. If we were to continue consuming these sources at such alarming rate, we would soon run out of energy. अगर हम इसी रफ्तार से फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते रहे तो कुछ समय बाद फॉसिल फ्यूल का स्टॉक ख़त्म हो जाएगा. हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमी का सामना करना पड़ेगा. इससे बचने के लिए अल्टरनेट सोर्स की खोज एवं विकास करना चाहिए. इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी वेयर एक्सप्लोर्ड. सोलर एनर्जी इज अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी. इंडिया इज फॉर्चुनेट टू रिसीव सोलर एनर्जी फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर. बाय सोलर एनर्जी वी मीन द लाइट एंड हीट एनर्जी which falls on the earth. Sun is a huge source of energy. Solar energy is very different from the conventional source of energy. Electric energy can be generated by direct conversion of solar energy. Solar heating devices. The devices which can store solar energy are called solar heating devices. Solar cooker. Solar cooker is a device which is used to cook food using the radiation heat energy of the sun. Solar cooker box is made up of wood box or some other insulating material. Solar cooker का box heat insulator से बनाया जाता है, जैसे लकड़ी या फिर प्लास्टिक. The inner body of a solar cooker is painted black. The food to be cooked is put into metal pots whose outside are painted black. Why we are paint black? Because black surface absorb more heat. Black color जो है heat का अच्छा absorber होता है, इसलिए कुकर के इनर साइड को और जो बर्तन होते हैं उसके आउटर साइड को ब्लैक कलर कर देते हैं. देन द मेटल पॉट्स आर पुट इनसाइड द सोलर कुकर बॉक्स विच इज़ कवर्ड यूजिंग ए ग्लास शीट, जो कि एक ग्लास शीट से कवर. वंस द हीट वेव्स ऑफ सन एंटर द बॉक्स द ग्लास कवर डज नॉट अलाउ देम टू एस्केप आउट ऑफ बॉक्स ईजिली. जो हीट वेव्स बॉक्स में ग्लास के थ्रू एंटर करती है वह हीट वेव रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन के द्वारा ग्लास से बाहर नहीं हो पाती है. अजीब बात है, एंटर हो जाती है लेकिन बाहर नहीं हो पाती. इसे समझने के लिए हमें कंपोजिशन ऑफ सनलाइट समझना होगा. सनलाइट थ्री रेज से मिलकर के बने होते हैं. अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज एंड इंफ्रारेड रेज. अल्ट्रावायलेट रेज की वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम तक रहता है. विजिबल रेज वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम एंड इंफ्रारेड रेज 7000 एंगस्ट्रॉम टू 7 to the power 7 एंगस्ट्रॉम.
अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है, जिसे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सनरेज में हीटिंग इफेक्ट इंफ्रारेड रेज के कारण होता है। जब सनरेज ग्लास पर पड़ती है तो इंफ्रारेड रेज कम वेवलेंथ वाले विजिबल रेज के साथ एंटर हो जाती हैं, लेकिन अकेले इंफ्रारेड रेज बाहर नहीं निकल पाती। दिस वे मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द हीट वेव्स इज कैप्चर्ड इनसाइड द बॉक्स, ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ सोलर कुकर बॉक्स इंक्रीज टू 100-140 डिग्री सेल्सियस in 2-3 hours. This heat is used to cook edible foods like rice, pulses and vegetables inside the black pots. Solar cells. It is the device which converts direct solar energy to electric energy. It is easy to see that these devices are useful only at certain time during the day. Solar devices sunlight के समय ही काम आते हैं. This limitation of using solar energy is overcome by using solar cells that convert solar energy into electricity. इस कमी को सोलर सेल्स के द्वारा दूर किया जा सकता है. A typical cells develops a voltage of 0.5 to 1 volt and can produce about 0.7 watt of electricity when exposed to the sun. एक अकेला सोलर सेल बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. A large number of solar cells are combined in an arrangement called solar cell panel that can deliver enough electricity for practical use. तो इसे कंबाइन कर करके एक सोलर सेल पैनल बनाते हैं जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. The principal advantages associated with solar cells are that they have no moving parts. इसमें कोई भी घूमता हुआ पार्ट्स नहीं रहता. They require little maintenance and work quite satisfactory without the use of any focusing device. थोड़े से रखरखाव और बिना फोकसिंग डिवाइस के हम इससे संतोषजनक वर्क ले सकते हैं. Another advantage is that they can be set up in remote and inaccessible areas of very sparsely inhabited areas in which laying of a power transmission line may be expensive and not commercially viable. इसका अन्य लाभ ये है कि ये रिमोट एरिया डेट मीन्स सुदूर, बहुत दूर, और इनएसेसिबल एरिया मीन्स अगम्य, जहाँ पहुँचने में बहुत मुश्किल हो, और बहुत कम बसाहट वाले क्षेत्र जहाँ पर लोगों की संख्या कम हो, ऐसे क्षेत्रों में भी जहाँ पर इलेक्ट्रिक केबल बिछाना बहुत एक्सपेंसिव हो, खर्चीला हो, और वो व्यापारिक दृष्टि से व्यावहारिक ना हो, ऐसे जगहों पर हम सोलर सेल को यूज़ कर सकते हैं. सिलिकॉन which is used for making solar cells is abundant in nature, but availability of the special grade silicon for making solar cell is limited. सिलिकॉन हमारे अर्थ में प्रचुर मात्रा में भरपूर पाया जाता है, पर सोलर सेल जो स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन से बनाया जाता है उसकी मात्रा सीमित है. द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर is still very expensive. Silver used for interconnection of the cells in the panel further adds to the cost. ये बहुत महंगा, और सोलर सेल पैनल बनाते समय इन्हें सिल्वर के द्वारा कनेक्ट करके बनाते हैं, सिल्वर से जोड़ के बनाते हैं, जो इसे और भी ज़्यादा खर्चीला कर देता है. In spite of the high cost and low efficiency, solar cells are used for many साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस. ये बहुत महंगा और कम मात्रा में इससे बनने वाले
इलेक्ट्रिसिटी के कारण इसे घरेलू यूज़ में ज़्यादा नहीं करते। फिर भी जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में इसका भरपूर उपयोग किया जाता है। यूटिलिटी ऑफ सोलर सेल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस प्रोब्स लाइक मार्स ऑर्बिटर्स यूज सोलर सेल एज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम और टीवी रिले स्टेशंस इन रिमोट लोकेशन यूज सोलर सेल्स पैनल। Traffic signal, calculators, and many toys are fitted with solar cells. The solar cell panel are mounted on specially designed inclined roof tops so that more solar energy is incident over it. The domestic use of solar cell is, however, limited due to its high cost. बहुत महंगा होने के कारण अभी इसका घरेलू यूज़ कम होता है। एनर्जी फ्रॉम द सी। 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी वी फाइंड फ्रॉम सी: टाइडल एनर्जी, वेव्स एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। टाइडल एनर्जी। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजेज एंड फॉल्स। मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण जो हमारे सी है, जो हमारे सी वाटर है, वो राइज और फॉल करते हैं। द डिफरेंस इन सी लेवल्स ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड्स गिव्स अस टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम across a narrow opening to the sea. A turbine fixed at the opening of the dam converts tidal energy to electricity. Wave energy. Similarly, the kinetic energy possessed by huge waves near the seashore can be trapped in a similar manner to generate electricity. The waves are generated by strong winds blowing across the sea. Ocean thermal energy. The water at the surface of sea or ocean is heated by the sun, while the water in deeper section is relatively cold. सी का सरफेस वाटर डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में होने के कारण बहुत गर्म, और उसका जो गहराई वाले क्षेत्र में वाटर रहता है उसका टेम्परेचर कम रहता है, ठंडा रहता है। दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर इज एक्सप्लॉइटेड टू ऑब्टेन एनर्जी इन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स। Geothermal energy. Due to geological changes, molten rocks formed in the deeper, hot regions of earth crust are pushed upward and trapped in certain region called hot spots. Geological change के कारण जो पिघला हुआ रॉक रहता है उसे अर्थ क्रस्ट ऊपर की ओर पुश करता है, जिससे वो किसी सर्टेन रीजन में ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है। ऐसे रीजन्स को हॉट स्पॉट कहते हैं। व्हेन अंडरग्राउंड वाटर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट स्पॉट, स्टीम इज जनरेटेड। जब इन हॉट स्पॉट के कांटेक्ट में, संपर्क में कोई अंडरग्राउंड वाटर आ जाता है तो वहाँ पर स्टीम जनरेट होता है। समटाइम्स हॉट वाटर्स फ्रॉम दैट रीजन्स फाइंड आउटलेट्स एट द सरफेस। Such outlets are known as hot springs. कुछ जगहों पर ये अर्थ सरफेस से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें हम लोग हॉट स्प्रिंग कहते हैं। Sometimes the steam gets trapped in rocks and its pressure increases. कभी कभी ये स्टीम जो है वो रॉक में ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं। This steam is routed through a pipe to a turbine. The turbine spins and activates as a generator and produce electricity. ये जो ट्रैप्ड स्टीम्स होते हैं वहाँ तक पाइप लगा करके उस स्टीम को टरबाइन तक लाते हैं। ये स्टीम टरबाइन को मूव कराते हैं, जिस जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।
The cost of production would not be much, but there are very few commercially viable sites where such energies can be exploited. ये बहुत कम खर्चीला होता है, लेकिन हमारे अर्थ में ये बहुत कम जगहों पर पाया जाता है. There are number of power plants based on geothermal energy operational in New Zealand and United States of America. इस तरह के प्लांट्स न्यूजीलैंड और अमेरिका में बनाया गया है. थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो.